And in today's episode, we are dive deep into this debate with the director of Learn. Welcome, so. Thank you, Anu, for asking this particular question. I believe this is a very, important doubt which is there in the minds of the students. So, yeah, we can definitely discuss about this in detail. Yes, so let's start with the basic that what is the key difference between the online MBA, regular MBA, and distance MBA? See, online, regular, and distance MBA, three are completely different, wherein online and distance is still, more or less very similar. So, first of all, I'll tell you about the difference between online and distance. So, in online MBA, basically the examination and the entire curriculum or the study that happens in the online mode, wherein when we talk about distance mode, the examinations happens at the exam center, which are dedicated in different cities by the universities, and the student has to go over there and give the examination, which is the physical presence is required. And if we compare about online, in online there is no such requirement. It's a proctor based exam wherein your system requirements are checked by the university. It should fit into the guideline, and you can appear in the examination from the place wherein you are at your residence or your work, wherever you want to. There is no requirement of going in person for the examination, wherein the curriculum study in both online and distance happens at their own place, wherein they have recorded in live lectures, both are present. If I talk about regular MBA is something wherein student has to attain full-time college, and they have to attend the lectures. They have obviously exams also happens in the university centers only. So this is the basic difference between three programs or the three types of programs that are running today in the market. बिटवीन दी ऑनलाइन MBAs और रेगुलर MBA एंड डिस्टेंस MBA. बट जब हम बात करते हैं कि कौन सा MBA स्टूडेंट को, वर्किंग प्रोफेशनल को, और कौन सा मतलब के क्या की फैक्टर्स होने चाहिए इनके बीच में ये चूज़ करने के लिए कि हमें कौन सा MBA करना है. See, as you rightly mentioned one word, which is working professional. So you yourself answered for one of the part. तो वर्किंग प्रोफेशनल ऑब्वियसली क्या होता है कि वो लोग अपने जॉब में बिजी होते हैं एंड दे डोंट हैव टाइम कि वो कॉलेज जाएं या अटेंड करें, तो रेगुलर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस में उनको एग्ज़ाम्स देने हैं हर सेमेस्टर में. अगर मैं एमबीए प्रोग्राम की बात करूँ तो एमबीए में 4 सेमेस्टर्स होते हैं. सो वेर एन दे हैव टू गो इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर, जहाँ पे उनको एग्ज़ाम जाके सेंटर पे देना पड़ेगा. अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हो सकता है उस टाइम पे उनका कुछ अगर कॉलेज में सॉरी इन देयर ऑफिस इफ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट कि अगर उनको जाके ऑफिस के अंदर कुछ अटेंड करना है, कुछ मीटिंग्स है, तो उनको वो स्किप करना पड़ेगा. तो इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन डिग्री इज़ दी बेस्ट, जहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ेगा. डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो प्रोबेबली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूं, या स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट किया है, या जिनको वर्क एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा नहीं है, 1 साल का है, 6 महीने का है, जहाँ पर कि वो ब्रेक भी ले सकते हैं, एग्ज़ाम्स देने भी जा सकते हैं, तो उस केस में वो लोग डिस्टेंस या रेगुलर एमबीए चूज़ कर सकते हैं. बट अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ रेगुलर एमबीए की, तो रेगुलर एमबीए उनको करना चाहिए जो बेसिकली अभी जॉब नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने पास आउट किया है अपना ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉब तो कर रखा है, जिनके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस है, बट दे वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर 2 इयर्स एंड फिर वो परस्यू करना चाहें. बट देन अगेन देर आर अदर चैलेंजेस जिसमें प्रॉब्ली विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट इन डिटेल. मतलब कि रेगुलर MBA जो फ्रेश ग्रेजुएट को ही करना चाहिए, यू आर सेइंग दैट. और अगर जो ऑनलाइन MBA है वो जिसे वर्किंग प्रोफेशनल है, जिन्हें वर्क के साथ फैमिली बैलेंस करनी है या फिर काम बैलेंस करना है, उन्हें ऑनलाइन MBA के लिए जाना चाहिए. तो अगर किसी स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है तो उसे ऑनलाइन MBA के लिए नहीं जाना चाहिए. See, this question cannot have a direct answer, जहाँ पर कि it is written कि अगर जॉब कर रहे हो तो आपको रेगुलर नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए. या आप अगर स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है, फ्रेशर है, तो उसको रेगुलर जाना चाहिए. डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अब जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड ही और शी वांट्स टू डू एमबीए, लेकिन वो ये चाहता है कि एमबीए करने के साथ में वो कुछ अपना दूसरा एक्सपीरियंस भी ले ले, इंटर्नशिप कर ले, या
वर्किंग एक्सपीरियंस ले ले, क्योंकि एमबीए के साथ में अगर वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तो आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बेटर मिल जाती है, आपको सैलरी जो है थोड़ा हाई मिल जाता है। तो वो लोग ऑनलाइन के लिए भी जा सकते हैं कि ठीक है आज नहीं है जॉब, बट 6 महीने बाद तो प्रोबेबली हो सकता है जॉब अगर होगी, जो सर्च कर रहे हैं उनको हो सकता है 6 महीने बाद मिल जाए। तो राइट। ऐसा तो है नहीं कि आज रेगुलर में एडमिशन ले लिया और 6 महीने बाद में फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, बिकॉज वो तो 2 साल का कोर्स है, आप उसको बीच में छोड़ नहीं सकते। तो दिस क्वेश्चन इज डिबेटेबल, देयर कैन नॉट बी एन आंसर, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। बट अगर मैं ओवरऑल अगर उसको समराइज करूँ तो प्रोबेबली जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं जिनको जॉब नहीं करनी है अभी, 2 साल का ब्रेक ले सकते हैं, वो लोग रेगुलर एमबीए के लिए जाएं। अब रेगुलर एमबीए में भी आप कैट में अपीयर करते हो, कैट के परसेंटाइल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, या आप जो कॉलेज लेना चाहते हो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर किसी को नारसी मुंजी में एडमिशन चाहिए तो नारसी मुंजी का जो कट ऑफ है कैट का वो बहुत हाई जाता है, या एनमैट में भी अपीयर किया जो नारसी मुंजी का एग्जाम होता है, एनमैट इज नारसी मुंजी एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अंदर भी अपीयर किया तो उसका कट ऑफ भी हाई जाता है। फिर उसमें जीडी राउंड होता है, पीआई राउंड होता है, फिर सिलेक्शन होने के बाद में आपको ऑन कैंपस आपको एडमिशन मिलता है। तो हर एक कैटेगरीज हैं, क्राइटेरियाज हैं, अगर वो अपीयर होने के बाद में अगर नहीं दिया तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साल में कैट आप मतलब देर आर सर्टेन ऑप्शंस ओनली जहाँ पे आप कैट दे सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप हर महीने दे सकते हो। राइट। सो देन द स्टूडेंट डिसाइड्स कि अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो साल भर वेट करना है, ड्रॉप लेना है, या प्रोबेबली कहीं पे जॉब ढूंढ करके ऑनलाइन एमबीए के लिए एडमिशन ले ले। सो ओके। दैट्स हाउ इट इज। ओके। सो अभी तो हमने बात कर ली कि किसको पर्टिकुलर ऑनलाइन एमबीए कौन सा चूज़ करना चाहिए एमबीए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट फैक्टर, मतलब अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें हमें, तो ऑनलाइन एमबीए, रेगुलर एमबीए और डिस्टेंस एमबीए, इनमें की फैक्टर्स क्या होंगे कि वो फीस स्ट्रक्चर्स क्या डिफरेंस होगा? जैसे कि स्टूडेंट को अगर मैं पैसे की बात करूं कि जो कितना आपका कॉस्ट लगेगा, तो तीनों के अंदर डिफरेंस है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन एमबीए आज की डेट में 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर होता है। अगर मैं डिस्टेंस एमबीए की बात करूं तो डिस्टेंस एमबीए के अंदर भी कॉस्ट सम और मोर नियर अबाउट इसी अमाउंट के अराउंड रहती है। बट ऑफलाइन जो आपका रेगुलर कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर आपका टॉप यूनिवर्सिटी है तो वो आज की डेट में 20 से 25 लाख रुपए से कम में एमबीए नहीं होता है। प्लस ये आपकी एडमिशन फ़ीस है, आपकी हॉस्टल फीस होगी विच इज़ योर अकोमोडेशन फ़ी, आप बाहर रहोगे या कॉलेज में रहोगे, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। प्लस आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस होंगे, तो मल्टीपल एक्सपेंसेस अगर आप ऐड करोगे तो एवरेज 25 लाख रुपए तक का आपका रेगुलर कोर्स का एमबीए का फ़ीस जाता है आराम से। अब उसके बाद में आपका जो प्लेसमेंट लगेगा, अगर वो प्लेसमेंट आपका से फॉर एग्जांपल 30 लाख का लग रहा है, या एवरेज अगर 25 लाख रुपए कैंपस का प्लेसमेंट है और आपका 25 लाख रुपए लग रहा है, तो आपने जितना लगाया 2 साल में उतना ही आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है, राइट? पर आपके 2 साल भी चले गए। बट इसी जगह अगर आप ऑनलाइन में जाते हो तो ऑनलाइन में आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं मिलती है हर जगह से, बट प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल जाता है। अब व्हाट आई मीन बाय प्लेसमेंट असिस्टेंस इज कि आज की डेट में अगर मैं एग्जांपल अगर किसी कॉलेज का लूँ, मणिपाल हो या नारसी मुंजी या डीवाई पाटिल, तो ये लोग प्लेसमेंट असिस्टेंट में आपको जो है मॉक जेडीज कराते हैं, मॉक पीआई आपके कराते हैं। देन आपको आईएम जॉब्स हो गया या बाकी जो हायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी, विच इज़ इंक्लूडेड इन दी पैकेज जो स्टूडेंट इनिशियली पे करता है। उसके अलावा इन लोगों का एलुमनाई बेस होता है, मतलब जो पुराने पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपको उनके साथ में नेटवर्किंग एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जहाँ पे आप उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो। जो ऑलरेडी वर्किंग है वो आप उनको रिज्यूमे दे सकते हो, तो आपका वहाँ पे भी जॉब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बट हाँ, कोई भी आपको ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट की गारंटी तो रेगुलर भी आपको इन राइटिंग नहीं देता है और ऑनलाइन भी नहीं देता है। इन ऑन पेपर इफ आई आस्क इन ब्लैक एंड वाइट, तो वो कोई कॉलेज नहीं देता कि हम आपको प्लेस कर ही देंगे। वो स्टूडेंट के कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्कोर्स लेकर के आ रहा है, उसका क्या सीजीपीए है या उसका नॉलेज लेवल क्या है, वो इंटरव्यू राउंड के अंदर कितने अच्छे से अपीयर हो रहा है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व। अगर देखा जाए तो अगर कोई रेगुलर एमबीए के लिए जाता है तो ऑफकोर्स स्टूडेंट बहुत सारे मतलब 20 से 25 लाख रुपए तो लगते ही हैं उसके, पर उसके बाद भी उसका प्लेसमेंट उतने पैकेज का नहीं लग पाता है। ज़रूरी नहीं है कि 100% जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनका टोटल 100% स्टूडेंट का उसी पैकेज पे हो जाएगा, तो वो तो वर्थ इट नहीं है। फिर तो या तो उसे फिर ऑनलाइन एमबीए के लिए देखना चाहिए या फिर उस पैकेज में भी दे कैन सर्वाइव। सी अगेन दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन। अब अगर आप एमबीए ऑनलाइन कर रहे हो या आप रेगुलर कर रहे हो, अगर आप रेगुलर कर रहे हो 25 लाख रुपए पे कर रहे हो और आपको पैकेज 25 लाख रुपए का लग रहा है,
तो आइडियली ये है कि आप 25 लाख रुपए पहले साल में अर्न करोगे, जिसमें आपके Right. एक्सपेंसेस होंगे। वो 25 लाख रुपए कवर अप करने में आपको कम से कम 3 साल लगेगा, करेक्ट। आपने 2 साल एमबीए के लगा दिए, 3 साल आपने वो लगा दिए, 5 साल आपके चले गए, करेक्ट। 25 लगाया, 25 आया, सो यू आर ऑन जीरो इन 5 ईयर्स। Yes. एक्सपीरियंस आया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो, बट हाँ अगर मॉनेटरी टर्म्स में कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट वो नलीफाई हो जाता है। अब वहीं मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन में आप 2 लाख रुपए पे करके 7-8 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की जॉब आप इजीली ले सकते हो। बट अगेन वहाँ पे आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपके लिंक्डइन के अंदर आप कनेक्ट करोगे लोगों से, थोड़े एफर्ट लेने पड़ेंगे आपको। Right. मतलब हर एक चीज़ आपको प्लेटर पे नहीं मिलेगी, आपको थोड़े से एफर्ट्स अपने एंड से भी लेने पड़ेंगे। वहाँ पे आपका आरओआई जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि आप 2 लाख लगा रहे हो, अगर आपको 8 लाख रुपए का मिल जाता है और उन 2 लाख रुपए लगाने के बाद में भी वो 2 साल भी आपने काम ही किया है, तो you have not sitting at home, you're earning something, doing MBA as well, and then you are getting a job as well. So it is a plus or a win-win situation for every candidate. So I believe online is a good option, and today as per UGC, which I told in my last session as well, wherein UGC has already told that online and offline और रेगुलर वट एवर यू कॉल दैट मोड, ऑफलाइन रेगुलर एक ही बात है, दोनों की जो डिग्री की जो वैलिडेशन है या जो क्रेडिबिलिटी है वो सेम है। राइट। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी बात कर ली कि फ़ीस स्ट्रक्चर्स की हो गया, कौन सा एमबीए किसे चूज़ करना चाहिए, बट अगर हम बात करें नेटवर्किंग, तो देखा गया है कि ऑनलाइन एमबीए और ऑफलाइन रेगुलर एमबीए में अगर नेटवर्किंग की बात करें तो बोला जाता है कि रेगुलर एमबीए में नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है एज़ कंपेरिजन टू ऑनलाइन एमबीए। तो इसमें आपका क्या बोलना? रेगुलर एमबीए में नेटवर्किंग इसलिए अच्छी होती है बिकॉज आपको वहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिखते हैं, तो आप उनसे नेटवर्किंग फिजिकली इमीडिएटली कर पाते हो। ऑनलाइन के अंदर एक पोर्टल है जहाँ पे आपको उनके साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है, अब वो आपके ऊपर है कि आप नेटवर्किंग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कोई आपसे आगे आकर के तो बात करेगा नहीं, राइट। दे ऑलरेडी आर डूइंग देयर वर्क, wherein you have to see that whether if that is useful for you or important for you, then you have to reach out and definitely they revert, क्योंकि see at the end of the day they are the alumni of the same university, Right. and if they can help you out with the career growth, और काफ़ी मतलब काफ़ी कंपनीज में आप देखोगे तो जो आप रेफरेंस देते हो तो रेफरेंस देने का आपको रेफरेंस बेनिफिट भी मिलता है उस पर्टिकुलर कंपनी से, तो वो भी उन लोगों को बेनिफिट एक मिलता है। तो obviously they can they obviously help the other students who are the juniors who are of the next batch. ओके, एपिसोड के लास्ट में अगर आपको मैसेज देना हो, जो भी स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप यंगस्टर को या वर्किंग प्रोफेशनल को क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर देयर करियर्स? If I have to give a message to students out there, I would just say that first of all understand what is your goal, and where do you want to reach 2 years, 3 years or 4 years, or let's say 5 years down the line. If you have that clarity in your mind, you'll be able to choose the right mode of the program and the right college as well, and the right specialization, of course. If student knows that 3 years down the line he wants to reach this position, then 2 years or 3 years down the line, whatever they choose as a goal, तो अगर 2 साल में आपको उस पोजीशन पे पहुंचना है तो रेगुलर करके क्या आप वो अचीव कर पाओगे, या आप ऑनलाइन करके विद द सैलरी विच यू विल टेक वाइल डूइंग द MBA, एंड देन यू कैन रीच दैट पोजीशन. सो दैट गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव दैट गोल सेट इन योर माइंड, एंड for the same discussion or for the understanding, we have our counselors, and counselors can help you out with that kind of clarity, that if you want to become a senior marketing analyst, or you want to become the marketing head, or let's say you want to become a research analyst or get into finance domain और banking BFSI में जाना है, तो उस केस में आपको किस पोजीशन पे पहुंचना है, क्या आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 साल 3 साल बाद, तो उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से मोड ऑफ प्रोग्राम में जाना चाहिए, एंड कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए, ये आपको वही बता सकता है जो डे इन डे आउट यही काम करता है. दैट इज़ व्हाट काउंसलर्स आर देयर फॉर, एंड दे आर द एक्सपर्ट्स, एंड दे कैन गाइड यू द राइट थिंग, एंड देन इट बिकम्स यू कैन डिसाइड इट इन अ मच मोर ईजियर वे. आपको एक हेल्प मिल जाती है, एक सजेशन मिल जाता है. राइट सर, एनी लास्ट फ्यू वर्ड्स? See, we want to share knowledge and our experience with the current people out there who are working professional and graduates or freshers. So we would appreciate if this goal is reached, and we can spread as much knowledge as possible so that people out there
can take our help to secure their career. Like, share, and subscribe, and secure your future with Learn Virtual.